हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं पॉलिटिकल साइंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, जो कई क्लास के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए देखते हैं हमारा आज का जो है महत्वपूर्ण टॉपिक क्या है। Caste politics. There is the according to caste system, the caste in politics. There is the most important. The caste began to play on the important role after the independence as the involvement in the political increase. The fact that it is excited as the easily is identifiable social caste of people made it is on easy object of political mobilization by the political party in their quest for the political support and the votes. Where the political party are sought to be exposed to the caste for its own electoral purpose. The caste group, by the making politics their sphere of the active, got a chance to be assert their identity and bearing for the benefit and position in the society. Thus, the caste and politics interaction has been a two-way of process. There is a most important way here. There is in the political in the caste association is a play a crucial role. The caste association, the where a quasi is a volunteer association in the sense that is a membership was open only to be individual of the caste community. This association were formed to the ensure to economics benefit or educational opening for more clearly political purpose of alternating their fight the hegemony of the upper caste. In the other caste, the involvement is the politics as a considerable necessary for scaling the specific purpose for which they were formed. Thus, once formed on the basis of the caste identity, the caste association went on the acquire non-caste functions. In electoral politics, there is a role of the caste is a politics that has become a powerful, and this can be seen at all level of the political process of the country. All the political party tend to be give a party ticket for the candidate for the contesting election for amongst the numerically or otherwise the dominant caste in every constituency. The major caste group get a representation in the counseling of minister. Be this election, there is a political appointment on even formation of political party. Caste has been the major considerations. The influence of the caste, however, varies depending upon to the level of election and their reason. Its influence is far more at the local and state level political process than at the national level. Caste play the great role in the rulers and then the urban area. In the rural area, at the local level, the smallest and consistency and the fact that there is a greater face by the face interaction account for the strong influence by the caste in politics. Since independent two factor has especially both the issue of caste in Indian politics into a sharp focus. And these are the first the integration of the universal adult franchisee and second constitutional provision for the protective discrimination in the favor of the backward classes. The introduction of the universal adult franchisee brought as a very large section of the profess and who has been to the interest executed on the account of property is a qualification to the vote into the arena in electoral politics. This made a task of mobilizing vote incredibly difficult for their political party. The doubtings is the task was, however, made easily when the political party relied upon to caste to get their votes. In this purpose, caste involvement in the political depend with the every section in India. In addition to be encouraged area of the electoral politics, the constitutional provision for their protective discrimination also provided to the is a ground for the caste to play a significant role in politics. One may be noted here that is a protective discrimination was the mean for three categories of people: the scheduled caste, scheduled tribes, and the OBC, collectively called as the backward class. Of these three categories, the SCS and STS were easily is identifiable, and there was a large measure of the conscience on the need and desirability of having to the reservation for them. But
the caste of the OBC was different. Since independent, two types of caste politics can be discriminated there. The first type involved the caste group is a remains either to the bearing or encouraged as a OBC by the state governments or this already recognized for a getting a higher quota in the reservation and the decision of the state government to the appointment backward classes and commonly commission for the time to time provide to the occasion for such as the state is a caste politics is a flourish. The second types of the caste politics is involve a mobilization of social and political force for on against reservation of for a OBC based solely in the caste criteria. And the extent of the caste involvement in the political can be appreciated by noting to the simple fact that over 50% of the population is a belong to the category of OBC. Well, the first type of caste politics is sorted to influence the reservation policy of the state government. The second type of caste politics was the aim to resist the reservation policy of the central government. The reservation issue thus the provided as a fertility ground for a caste to play an active role in the politics. देखिए यहाँ पर जाति के रिगार्डिंग जो हमारा यहाँ पर टॉपिक आया है, जाति में राजनीतिक में जाति, यानी राजनीतिक में जाति ने बहुत बड़ा गढ़ कर लिया है और आज जो राजनीति होती है वो जाति पे आधारित होती है। आज जो है बड़े बड़े नेता जो है लोगों को जातियों में बांट रहे होते हैं और उससे जो है अपना मकसद पूरा कर रहे होते हैं। इवन कि आप देखोगे न्यूज़ में भी यही जातियों का ही बंटवारा हो रहा होता है। कोई ये कहते हैं न्यूज़ वाले कि जो है इस क्षेत्र जो है गुज्जर क्षेत्र का है, ये क्षेत्र जो है ओबीसी क्षेत्र का है, ये जो एसटी कास्ट के लोग रहते हैं। तो न्यूज़ वाले भी जो है इनको कई वर्गों में बांट रहे हैं, जो कि हमारे देश के लिए कभी भी उचित और न्याय उचित नहीं हो सकता है। यानी कहते हैं हर जगह जो है जाति की भेदभाव लगी रही है, चाहे वो बड़े बड़े न्यूज़ चैनल वाले हों, चाहे बड़े बड़े राजनीतिज्ञ हों, सब के सब जो है हमारे धर्मों को जातियों को बांट रहे होते हैं और इनके वोटों को भी बांट रहे होते हैं। आपने न्यूज़ में भी सुना होगा कि इतना वोट परसेंट जो है गुज्जर जाति का है, इतना वोट जो है ओबीसी कैटेगरी का, इतना जो है मुस्लिम जाति का है। अरे भाई, जब बड़े बड़े न्यूज़ चैनल जो इतना मान सम्मान प्राप्त कर रखे हैं वो जब जातियों को बांट रहे होंगे तो आम इंसान में क्या इसकी दुर्दशा होगी, इससे आपसे अधिक समझदार कोई हो ही नहीं सकता इसके लिए। तो न्यूज़ वालों को भी इतना समझ होना चाहिए कि जातियों में ना बांटे तो ही अच्छा है, क्योंकि जाति हम लोग वहीं से सीखते हैं। कहते स्वतंत्रता के बाद जाति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना शुरू किया है। राजनीति में इनकी भूमिका अधिक बढ़ गई है। सच्चाई यह है कि आसानी से पहचान में आने वाले सामाजिक समूह के रूप में इसकी स्थिति में राजनीतिक दलों को इनके वोट और समर्थन प्राप्त करने के लिए जाति को जो है राजनीतिक लंबबंदी का विषय बना दिया है। आपने देखा भी होगा कि जाति के आधार पर भी टिकट मिलती है। जिस क्षेत्र में जितने जाति होंगे उसी व्यक्तियों में से एक को जो है टिकट दी जाती है, चाहे वो मूर्ख हो चाहे वो अपराधी वृत्त का हो। सिर्फ उनको इसलिए वोट मिल जाती है टिकट क्योंकि उस जाति से वो बिलोंग करते हैं और उस जाति पे उनकी बहुत बड़ी दबदबा है। तो ये बहुत बड़ी विडंबना है भारत के लिए कि आज जो है राजनीति में वो सारे व्यक्ति सम्मिलित हो जाते हैं जिनको अपराधी वृत्ति का होते हैं और कहते हैं इसमें सरकार किसी तरह के कुछ भी नहीं होता, ना रूल रेगुलेशन इन पे लागू होती है। तो ये भारत के लिए बहुत बड़ी विडंबना बन गई है। आज जो है स्वतंत्र और अच्छे विचार वाले लोगों का बहुत राजनीति में कमी हो गई है। स्वतंत्रता के बाद भारतीय राजनीति में जाति के मुद्दे के दो कारकों से विशेष ध्यान आकर्षित किया है। पहला तो यही है कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार लागू होना, यानी भारत में जो है 18 वर्ष की जो वोट देने का अधिकार लागू किया है, इसने बहुत बड़ी जो है अपनी पैठ बना लिया है। कारण क्या है कि अब जो 18 वर्ष के जो बच्चे होते हैं वो भी अगर वयस्क हो चुके होते हैं और उनको भी वोट देने का अधिकार है। तो आपको पता है कि भारत में जो 18 वर्ष की एज के जो होते हैं बहुत अधिक अमाउंट में व्यक्ति होते हैं। दूसरी बात आती है पिछड़ी जातियों के पक्ष में सुधारात्मक आरक्षण के सर्वैधानिक प्रावधान, यानी देखोगे तो पिछड़ी जातियों के लिए बहुत से आरक्षण किए हैं। कहते हैं अगर आप जनरल कैटेगरी के हो तो आपको जो है दिन रात जो है मेहनत करना पड़ेगा। अगर आप SC/ST कोटा से बिलोंग करते हो तो आपको जो है निश्चिंत से सोने की ज़रूरत है, आपको अधिक पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती है क्योंकि आपके लिए जो है पहले ही रिजर्वेशन सीट कर दिया होता है। तो ये पढ़ाई लिखाई में भी भेदभाव आज होने लगा है, तो ये गलत है। आज हमें ये समझना चाहिए कि आज जो है
ओबीसी, एससी या कोई भी कैटेगरी के लोग हैं, हमारे समाज में सामान्य उनको अधिकार मिला हुआ है और उनको हर जगह जो है सम्मान की दृष्टि से देखी जाती है और बहुत से व्यक्ति जो होते हैं मेहनत करके आगे भी आ रहे हैं। तो भारत में जो है जाति व्यवस्था की जो ये बनाई गई व्यवस्था है उसे ख़त्म कर देने में ही भलाई है, क्योंकि आज जो पढ़े लिखे अच्छे बच्चे होते हैं वो रह जाते हैं, लेकिन रिजर्वेशन के कारण क्या होता है कि जो बच्चे पढ़े लिखे भी अधिक नहीं होते वो रिजर्वेशन के कारण सेलेक्ट हो जाते हैं। देखिए दोस्तों, ये बात बहुत ज़रूरी है। आप आधुनिक युग में आ चुके हो, यहाँ पर जो है सभी व्यक्ति मेहनत करते हैं, सभी जो है अच्छा पद प्राप्त करना चाहते हैं। तो मेरे विचार से पद उनको मिलना चाहिए आज के समय में जो उसके लायक हो, ठीक है। जो लायक नहीं होते उनको नहीं मिलना चाहिए, नहीं तो भारत का जो है कंडीशन दिन प्रतिदिन खराब होता चला जाएगा। ये उन व्यक्तियों के हाथों में चला जाएगा जिनको जो है अच्छे से समझ बूझ नहीं होगी और फिर भी राजनीतिक में या जो है बड़े बड़े अफसर में बन के जो है देश को खोखला करने में अग्रसर हो जाएंगे। क्योंकि आज के समय में जो है हम आधुनिक युग में रह रहे हैं और यहाँ पर जो है पढ़ाई लिखाई जो है मेहनत का काम है। कुछ ही व्यक्ति जो है इस मेहनत को समझ पाते हैं, सभी व्यक्तियों में इस बात की समझ नहीं होती है। इसलिए जो है पिछड़ी जातियों के पक्ष में सकारात्मक आरक्षण की जो संवैधानिक प्रावधान किया गया है वो देशव्यापी नहीं है। सार्वभौमिक जो है वयस्क जो है मताधिकार से जनसंख्या के एक बड़े ही वर्ग को चुनावी राजनीति में प्रवेश मिल गया है। तो ये बहुत बड़ी बात है। देखिए, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के कारण क्या हुआ है, जनसंख्या के एक बड़े वर्ग को जो है चुनावी राजनीति में प्रवेश मिला है। क्योंकि आपको पता है हमारे देश में 18 वर्ष से या 18 वर्ष के व्यक्तियों की संख्या बहुत अधिक होती है, जिसे अब तक संपत्ति की जो है योग्यताओं के आधार पर बाहर रखा गया था। इसे राजनीतिक दलों के लिए वोटों की लामबंदी काफ़ी कठिन हो गया है, परंतु यह कठिन काम तब आसान हो जाता है जब राजनीतिक दल वोट प्राप्त करने के लिए जो है जातियों पर निर्भर होने लग जाते हैं। इसे प्रक्रिया में प्रत्येक चुनाव के साथ जातियों के चुनाव में भागीदारी मजबूत होती गई है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है, कहते समय के साथ ये काफ़ी मजबूत होना एक स्वाभाविक बात है। चुनावी राजनीति के जो है विस्तृत क्षेत्र के साथ सुरक्षात्मक भेदभाव के जो है संवैधानिक प्रावधानों में ने जातियों को जो है राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का आधार प्रदान किया है। यानी इसका जो है काफ़ी भूमिका जो है इसका आधार बना दिया गया है। यह बात ध्यान देने योग्य है कि ऋणात्मक भेदभाव 3 प्रकार के वर्गों के लिए था। एक तो थी अनुसूचित जातियों के लिए, एक थी अनुसूचित जनजातियों के लिए तथा एक था अन्य पिछड़ी जातियों के लिए। इन तीनों वर्गों में जो है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आसानी से पहचानी जा सकती थी और इसके लिए आरक्षण की आवश्यकता और इच्छा पर अधिकांश सर्वसम्मति थी। परंतु अन्य पिछड़ी जातियों का जो है मामला इनसे अलग थी। यानी इन देखोगे तो पिछड़ी जातियों में जो है कई जाति जो है आ जाती है। दूसरे प्रकार की जातीय जो है राजनीति में ऐसे सामाजिक राजनीतिक दल आते हैं जो केवल जातीय आधार पर अन्य पिछड़ी जातियों को आरक्षण देने के पक्ष अथवा विरुद्ध लंबित काम करते हैं। राजनीति में जाति भागीदारी का अनुमान केवल इसी तथ्य से लगाया जा सकता है कि कुल जनसंख्या का लगभग 50% अन्य पिछड़ी जातियों के संबंध रखता है। अब देखिए, भारत की कुल जनसंख्या का अगर 50% अन्य पिछड़े जातियों में आती है तो आप समझ सकते हो कि अगर कोई चीज़ की आरक्षण दिया जाए तो कितना बड़ा जो है जनसंख्या ओबीसी के अंतर्गत आ जाएगा। पहले प्रकार की जातीय राजनीति राज्य सरकार की आरक्षण नीति की प्रभावित करने का प्रयास भी करती है। तो दूसरे प्रकार की जातीय जो है राजनीतिक उद्देश्य को केंद्र सरकार की संरक्षण नीति का विरोध भी करना है। देखिए, कहते हैं जातीय आरक्षण जो है हमारे देश में अब नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारा देश जो है काफ़ी सभ्य हो चुका है, काफ़ी विकसित हो चुका है और यहाँ पर जो है आज एजुकेशन को महत्व देना चाहिए, न कि जाति को देना चाहिए। कहते हैं पहले इनके साथ भेदभाव की जाती थी तो ये न्याय उचित था क्योंकि इनको आगे बढ़ाना, लेकिन आज के समय में कोई जाति भेदभाव नहीं रह गई है तो इनको जो है आरक्षण ख़त्म कर देना चाहिए और इससे वो व्यक्ति सब आ सकते हैं राजनीतिक में या अच्छे पोस्ट पे जो उनके योग्यता रखते हों। इस प्रकार आरक्षण के मुद्दे ने जातियों की राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाने को उपजाऊ भूमि प्रदान की गई है। कहते हैं नीति निर्देश सिद्धांत के अध्ययन में अनुच्छेद 38 और 46 के अनुसार राज्य का यह कर्तव्य है कि वो जनसाधारण कल्याण का सामान्य एवं पिछड़ी जातियों के कल्याण का विशेष ध्यान रखे। अनुच्छेद 38 कहता है कि राज्य के लोगों के कल्याण हेतु ऐसी सामाजिक व्यवस्था को जो है प्रभावशाली ढंग से तैयार एवं प्राप्त करनी चाहिए जिसमें जो है राष्ट्रीय जो जीवन के सभी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक संस्थाओं में न्याय हो। दूसरी बात ये कहती है कि राज्य को विशेष रूप से न केवल लोगों के बीच अतुल विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले लोगों तथा
विभिन्न विभिन्न व्यवसायों में जुटे लोगों को जो है समूहों के बीच आय में असमानता को कम करने में प्रतिष्ठा, सुविधाएं तथा अवसरों की जो है असमानताओं को प्रकट करने का प्रयास करना चाहिए। जो कि बहुत बड़ी बात यहाँ पर आ जाती है कि असमानता को कम करना बहुत बड़ी जरूरी हो गया है। अनुच्छेद 46 के अनुसार राज्य लोगों के कमजोर वर्ग और विशेष रूप से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की शैक्षिक और आर्थिक हितों के पूरा ध्यान से प्रोत्साहित करेगा तथा उन्हें सभी प्रकार के जो है शोषण तथा अन्याय से बचाएगा। देखिए, अन्याय से बचाना बहुत जरूरी है। कोई भी जाति को अगर दूसरे जाति उसको गलत कहता है तो इनके लिए प्रावधान जो है न्यायालय में होनी चाहिए, जिसमें इनकी सुनवाई फास्ट होनी चाहिए। तो ये बात न्याय उचित है, क्योंकि किसी को हम जो है धर्म के रिगार्डिंग छोटा या बड़ा नहीं कह सकते। कहते हैं जाति कोई भी हो, सभी भारत के नागरिक है, लेकिन इसमें आरक्षण प्रदान करना, क्योंकि इससे ये हो जाता है जो बच्चे काफ़ी मेहनत करते हैं वो उनका जीवन जो होता है तहस नहस हो जाता है। इसलिए आरक्षण के कोटे को जो है अभी सरकार पे भी इस पर विचार करने की ज़रूरत है और इसमें संशोधन करने की आवश्यकता है। आरक्षण की नीति जो है सकारात्मक भेदभाव के सिद्धांत पर आधारित है। संविधान निर्माताओं ने पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षित भेदभाव के आवश्यक समझा था, क्योंकि केवल अवसरों की समानताओं से पिछड़े जातियों को लोगों को समाज के अन्य लोगों के बराबर नहीं लाया जा सकता। परिस्थितियों की समानता के बिना अवसर की समानता का परिणाम समानता लाने के बजाय असमानता को बढ़ाना होगा। यह जो है गैर करने योग्य बात है, यानी बहुत ही जरूरी बात इसको है कि सकारात्मक भेदभाव जो है असमानता को अधिकार का बाद न होकर उसका एक विभिन्न अंग सा बन गया है। तो ये बहुत बड़ी बात यहाँ पर थी, जिसके 46 के बारे में और 38 के अनुच्छेद के बारे में हमने डिस्कस किया, जो कि बहुत ज़रूरी थी। ठीक है, इसी के साथ दोस्तों हमारा ये टॉपिक जो है ख़त्म हो जाता है। आगे का टॉपिक जो है हम अगले पार्ट में करेंगे, जो कि बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, जिसमें हम जो है आरक्षण के विषय में ही चर्चा करेंगे, यानी रिजर्वेशन के बारे में हम पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे कि रिजर्वेशन होती क्या है और इसका क्या महत्व है। तो अगला वीडियो देखना मत भूलना। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करना नहीं भूलना। इसमें से 2 बातें आपको नहीं भूलना है। पहला ये कि जितना हो सके इस वीडियो को जो है दूसरे बच्चे तक पहुंचाने में आपने तिरपान स्टडी सेंटर को सहायता करना है। तो इसलिए क्या करना है, व्हाट्सएप स्टेटस पर जो है इस वीडियो का लिंक को जो है लगाना है। और दूसरी बात ये, अगर पहली बार वीडियो देख रहे थे तो आपको जो है चैनल सब्सक्राइब करके रखने में भलाई है, क्योंकि अगर आपको टॉपिक अच्छा लगता है, समझ भी आ रहा है, तो दूसरी बार अगर आप रिसर्च करोगे तो आपको इसके रिगार्डिंग तिरपान स्टडी सेंटर का कोई भी टॉपिक नहीं मिलेगा। टॉपिक पहले वो आएगा जो पहले ही यूट्यूब पे उपलब्ध है। ठीक है, या अगर आप तिरपान स्टडी सेंटर को अगर आप जो रिसर्च करोगे तो आपको जो है वहाँ पर तिरपान की जगह तिरपस कर देगा, तो इसमें भी आपको कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, अगर आप चैनल सब्सक्राइब करके रखिएगा तो इसका ये फ़ायदा होगा कि आपको जो है इसका तिरपान स्टडी सेंटर का जो है होम पेज आपको प्राप्त हो जाएगा। और होम पेज पे आपको पता है कि वीडियो का ऑप्शन रहता ही रहता है, तो वहाँ से आपको वो सारे वीडियो लाइन वाइज मिल जाएंगे जो तिरपान स्टडी सेंटर ने डाले हैं। इसमें आपको ढूंढने में बहुत मुश्किल नहीं सामना करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर तिरपान सेंटर जो है एक सब्जेक्ट को उठाता है तो उसके सारे सिलेबस को क्लियर करने के बाद ही दूसरे सिलेबस पे जाता है। तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा रहता है।